وائٹ ہاؤس کے عشائیہ کے دوران فائرنگ، ٹرمپ خاتون اول، نائب صدر اور کابینہ کے اراکین محفوظ، فائرنگ کرنے والا گرفتار، 5 راؤنڈ فائر کیے گئے۔ فائرنگ کے بعد تقریب میں بھگدڑ مچ گئی۔ سیکرٹ سروس اہلکاروں نے اسٹیج پر چڑھ کر ٹرمپ کو حفاظتی حصار میں لیا اور وہاں سے باہر لے گئے۔ کچھ لوگ ٹیبلز کے نیچے چھپ گئے۔ حملہ آور کی شناخت 31 برس کے کول تھامسن ایلن کے نام سے ہوئی۔ کیلیفورنیا کا رہائشی ہے۔ ملزم پارٹ ٹائم ٹیچر اور گیم ڈیولپر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ واشنگٹن پولیس چیف نے کہا ہے کہ یہ بات ابھی تک معلوم نہیں ہو سکی کہ مشتبہ شخص نے حملہ کیوں کیا اور اس کا ہدف کون تھا۔ ملزم نے مرکزی دروازے کی طرف آنے کی کوشش کی، بال روم کے باہر سیکرٹ سروس اہلکار پر فائرنگ کی۔ اہلکار حفاظتی جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا۔ ملزم کے پاس کئی ہتھیار تھے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیوٹ کا کہا سچ ہونا۔ حملے سے 12 گھنٹے پہلے کول تھامس ایلن کی اسرائیل میں تلاش۔ حملہ آور کی انسٹاگرام پر اسرائیلی فوج کی وردی میں تصویر اور پھر حملے کے بعد میڈیا کی جانب سے ہٹایا جانا۔ کیا وائٹ ہاؤس میں تقریب میں فائرنگ کا واقعہ پری پلان تھا؟ کیا اندرونی سازش؟ کیا ہمیشہ کی طرح کسی خفیہ طاقت کا ہاتھ؟ این حملے سے پہلے مینٹلسٹ اوس پارلیمنٹ کا ایک کارڈ لہرانا اور میلانیا ٹرمپ کے چہرے پر چھا جانے والا شدید خوف، سوالات اٹھ گئے۔ دنیا کی مضبوط ترین سیکیورٹی کے دعوے داروں کے درمیان شاٹ گن اور چاقو کے ساتھ چیک پوائنٹ توڑتے ہوئے اندر آنا، دنیا نے سوالات اٹھا دیے۔ Was there any indication that this shooting could have been linked to the war in Iran? I don't think so, but you never know. We're going to know a lot. We have the best people in the world working on it, and this was an event dedicated to freedom of speech. A man charged a security checkpoint armed with multiple weapons. And he was taken down by some very brave members of Secret Service, and they acted very quickly. One officer was shot, but saved by the fact that he was wearing obviously a very good bulletproof vest. He was shot from very close distance with a very powerful gun. اگر وائٹ ہاؤس میں زیر تعمیر عسکری سطح پر انتہائی خفیہ بال روم پہلے سے موجود ہوتا تو یہ واقعہ کبھی پیش نہ آتا۔ اس کی تعمیر جتنی جلد ممکن ہو کم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں کہا، گزشتہ رات جو کچھ ہوا وہ بالکل اسی بات کی دلیل ہے کہ ہماری عظیم فوج اور سیکرٹ سروس گزشتہ 150 برسوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے احاطے کے اندر ایک انتہائی سیکیورٹی والا بال روم تعمیر کیا جائے۔ اس سے قبل ٹرمپ نے نیوز کانفرنس میں کہا کہ وہی حملہ ور کا ہدف تھے۔ فائرنگ کا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ سیکیورٹی نے تیز رفتاری سے حملہ ناکام بنایا۔ یہ پہلا حملہ نہیں، پہلے بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا۔ سن 2023 دسمبر میں کیا گیا ٹویٹ دیکھتے ہی دیکھتے وائرل۔ ٹویٹ میں ٹرمپ پر فائرنگ کرنے والے کا نام لکھا گیا۔ ٹائم ٹریولنگ پر دلچسپ بحث چھڑ گئی۔ 3 سال قبل ہنری مارٹنز کے ایکس اکاؤنٹ سے ٹرمپ پر فائرنگ کرنے والے کا نام ٹویٹ ہوا۔ سوشل میڈیا صارفین ورطۂ حیرت میں مبتلا۔ صدر زرداری اور وزیراعظم کا ٹرمپ کی موجودگی میں فائرنگ پر اظہار افسوس۔ صدر ٹرمپ نے ڈنر میں فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی کی گھناؤنی قسم قرار دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے ایکس پر جاری بیان میں کہا، عشائیے میں فائرنگ کے پریشان کن واقعے سے گہرا صدمہ ہوا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا بھی ایکس پر مذمتی بیان، کہا کہ اطمینان ہے کہ صدر ٹرمپ، نائب صدر اور خاتون اول محفوظ ہیں۔ ہم ہر قسم کے تشدد کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ مشرق وسطی میں قیام امن کا مشن، ایران اور امریکہ کے مذاکرات کی بحالی کی کوششیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی مقصد کا دورہ کر کے واپس پاکستان پہنچ گئے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان وہ اسلام آباد میں اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتوں کے بعد ماسکو کے لیے روانہ ہوں گے۔ عباس اراغچی کل رات ہی پاکستان سے سلطنت عمان گئے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا تھا کہ جنگ کو مستقل طور پر ختم کرنے کے لیے قابل عمل فریم ورک کے حوالے سے موقف پیش کیا۔ دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ واقعی سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے بھی یا نہیں۔ عباس اراغچی نے قطر کے وزیر اعظم کے ساتھ سفارتی کوششوں پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں کا جنگ بندی سے متعلق پیش رفت اور اس کے استحکام کی چیلنجز پر تبادلہ خیال۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے قطری وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ سے رابطے۔ سعودی وزیر خارجہ سے رابطے میں تازہ ترین علاقائی پیش رفت اور جاری سفارتی عمل پر تبادلہ خیال۔
धमकी और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे, ईरानी सदर मसूद पेशकियान ने वाज़ेह कर दिया। शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा कि माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने हमारी बदएतमादी में इजाफा किया। जब तक जारहाना इक़दामात ख़त्म नहीं किए जाते एतमाद बहाल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात बहाल करने के लिए अमरीका बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे। ईरान वेनेजुएला नहीं, खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के सीनियर ओहदेदार का अमरीका को इंतबाह। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल मोहम्मद जाफर ने खबरदार किया, दुश्मन अबनाए हुर्मस पर अपनी मर्जी मुसल्लत करने में कभी कामयाब नहीं होगा। खलीज फारिस और अबनाए हुर्मस ईरान और इसके हमसाया मुल्कों की मिल्कियत हैं और अमरीका को इस खित्ते के मामलात में राय देने या मुदाखलत का कोई हक हासिल नहीं। अमरीकी फौजी बरतरी के बावजूद ईरानी मुनज़्ज़म हिकमत अमली पर माहिरीन हैरान। जानी नुकसान के बजाय अमरीकी तंसीबात ईरानी हमलों का हदफ थीं। अमरीकी बेड़े, रडार्स और रनवेज को ईरानी मिज़्ज़ से नुकसान। ईरान ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए अहदाफ को दुरुस्तगी से निशाना बनाया। महंगे दिफाई निज़ाम फेल, कम लागत ईरानी ड्रोन्स ने जंगी हिकमत अमली बदल दी। अमरीका ने आम तबाही मचाई, ईरान ने तंसीबात की तबाही की हिकमत अमली अपनाई। सयूनी हुकूमत की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी, जनूबी लेबनान पर हमले, 6 शहरी शहीद, शहादतों की तादाद 2496 हो गई। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक शहादतों की तादाद 2496 तक जा पहुंची है। 2 माह में 7725 शहरी जख्मी हो चुके। नेतन्याहू ने फौज को लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भरपूर हमलों का हुक्म दे दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर जारी बयान के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्सेस को हिदायत की गई है कि वो हिजबुल्लाह के अहदाफ को सख्ती से निशाना बनाएं। सदर जरदारी का 5 रोज़ा दौरे चीन हनान के चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सानी ग्रुप के चेयरमैन की ब्रीफिंग, तामीराती शोबों में ज़ेर इस्तेमाल हैवी मशीनरी और मुतालिका आलात की पैदावारी सलाहियत पर ब्रीफिंग। कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में भी आगाह किया गया। सदर मुमलिकत को कंपनी की फ्लैगशिप फैक्ट्री का दौरा भी करवाया गया। सदर जरदारी की चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें भी होंगी। हुकूमत सिंध और चीनी कंपनीज के दरमियान मुआहदे मुतवक्किल। इस्लामाबाद में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को दाखिले की इजाज़त। फैज़ाबाद के सिवा तमाम बस अड्डे खुल गए। डीसी इस्लामाबाद के मुताबिक फैज़ाबाद बस टर्मिनल ताहुक्म सानी बंद रखा जाएगा। तमाम मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। मेडिकल स्टोर्स, अस्पताल, पेट्रोल पंप्स, डेयरी शॉप्स पाबंदी से मुस्तस्ना। हाइकिंग ट्रेल्स भी खुल गए। रावलपिंडी के तमाम दाखिली और खारिजी रास्ते हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुल गए। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो और ग्रीन बस सर्विस बहाल। पाकिस्तान की दाराजाती और अस्करी मजबूती दुनिया के सामने वाज़ेह। भारत को बयानिया, सिफारती और दीगर तमाम महाजों पर शिकस्त। पाकिस्तान का सच आलमी सतह पर एक रोशन हकीकत के तौर पर सामने आया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात और मन घड़ट बयानिए को आलमी सतह पर पजीराई न मिल सकी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने भारत को पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश की, जिसके बाद भारत सिफारती महाज पर बैकफुट पर चला गया। आलमी हिमायत पाकिस्तान को मिली भारत का हकीकत के पेशकश का जवाब ना देना उसके मौक़िफ़ पर ही सवालिया निशान है। Recent tragedy in Pahalgam is yet another example of this perpetual blame game which must come to a grinding halt. पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारत की इल्ज़ाम तराशी पर वज़ीर आज़म का तारीखी और दो टोक मौक़िफ़। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तानी क़यादत ने भारत को खुले अल्फाज में खबरदार किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पहलगाम का वाक़या बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी की एक वाज़ेह मिसाल है। हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफ़ा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े पर भारत को गैर जानिबदाराना और शफ़ाफ़ इंक्वायरी की गैर मशरूत पेशकश की। पहलगाम
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में रॉ का मकरू किरदार बेनकाब। भारत ने सियासी अज़ाइम की तकमील और इंतहा पसंदी से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की लीक शुदा दस्तावेज ने फॉल्स फ्लैग साजिश को बेनकाब कर दिया था। दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत मौजूद थी कि जिला अनंतनाग में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जाएगा। मुनज़्ज़म तौर पर मीडिया के जरिए ये बयानिया तरतीब दिया जाएगा कि गैर मुस्लिमों पर हमला कर दिया गया। भारतीय मीडिया की पाकिस्तान को मौरूद इल्ज़ाम ठहराने की गुमराहकुन मुहिम भी इस दस्तावेज का हिस्सा थी। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां, भारत की पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश। वज़ीर ममलिकत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी खेल दास कोहिस्तानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत में अक़लियती बिरादरी पर मज़ालिम के हवाले से कहा, भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद कोई नया रुझान नहीं। पहलगाम वाक़े को अक़लियतों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया। वज़ीर अक़लियती उमूर पंजाब रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा, भारत का नाम नहाद सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 रावलपिंडीज को शर्मनाक शिकस्त। हैदराबाद किंग्समैन्स रावलपिंडीज को हरा कर प्ले ऑफ मरहले में इन। दिफाई चैंपियन कलंदर्स आउट। रावलपिंडीज हैदराबाद किंग्समैन्स के दिए गए 245 रन के हदफ के ताक़ुब में 18वें ओवर में 136 रन पर ढेर। कराची के नेशनल स्टेडियम में हैदराबाद किंग्समैन्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 240 रन बनाए। दूसरे मैच में मुल्तान सुल्तान्स का इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 193 रन का हदफ। नेशनल स्टेडियम में इस्लामाबाद यूनाइटेड की हदफ के ताक़ुब में बल्लेबाजी जारी। प्ले ऑफ मरहले के लिए टीमों की लाइनअप मुकम्मल। हैदराबाद किंग्समैन्स प्ले ऑफ में जाने वाली चौथी टीम बन गई। 3 टीमों का फैसला पहले ही हो चुका, जिनमें पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स शामिल हैं। PSL फाइनल के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का कल से आगाज़। PCB के मुताबिक 28 अप्रैल से फिजिकल टिकट्स मुकर्रर करदा कोरियर सेंटर्स पर दस्तियाब होंगी। जनरल एनक्लोजर 1500 रुपये, फर्स्ट क्लास का टिकट 2000 रुपये मुकर्रर, प्रीमियम 4000, VIP 6000, VIP फॉर एंड का टिकट 8000 रुपये में दस्तियाब होगा। इख्तितामी तकरीब भी होगी। फाइनल 3 मई को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जारी। हुसैनाबाद में मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकुओं ने 5 नौजवानों को लूट लिया। मोबाइल फोन और नकदी छीनकर फरार। CCTV फुटेजेस मंजर आम पर वारदात के दौरान 2 नौजवानों की हाजिर दिमागी डाकुओं की नजरों से बचकर अपना मोबाइल फोन जमीन पर फेंक दिया। 25 किलो या इससे कम वाट के सोलर सारिफीन के लिए फ़ीस ख़त्म करने की सिफारिश। पावर डिवीज़न का बड़ा इक़दाम। नेपरा से लाइसेंस की शर्त ख़त्म करने के लिए नज़रसानी की दरख्वास्त। पावर डिवीज़न का कहना है कि नए रेगुलेशंस छोटे सारिफीन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। पहले छोटे सोलर का सिस्टम्स बगैर फ़ीस और लाइसेंस के मंजूर होते थे। मौजूदा तरीक़ाकार काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग़ में रुकावट बन सकता है। महकमे सेहत सिंध की ग़फलत, सिंध में मोतदी अमराज बेकाबू। HIV के बाद सिंध में खसरा की वबाई सूरत हाल। 40 बच्चे जाँ बहक। माहिरीन के मुताबिक खसरा एक इंतहाई मोतदल वायरल बीमारी है जो मीज़ल्स वायरस से फैलती है। खसरा की अलामात में यकदम तेज़ बुखार और जिस्म में दर्द शामिल है। सर से बारीक सुर्ख दानों का पूरे जिस्म में फैलना भी शामिल है। कराची में सूरज सवानीज़े पर शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। शिद्दत 38 डिग्री महसूस की गई। शदीद गर्मी से शहरियों का बुरा हाल। गर्मी की हालिया लहर मज़ीद 2 दिन बरकरार रहेगी। महकमा मौसमियात की मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई। कराची में गैस बहरान संगीन। बिजली की तरह एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। गैस बंदिश से सारिफीन अजियत से 2-4। PIB कॉलोनी, लाइन्स एरिया, लियारी, PNT कॉलोनी और नाज़माबाद समेत शहर के दीगर इलाकों में शहरियों के चूल्हे ठंडे। सारिफीन लकड़ियाँ जलाने और महंगे दामों सिलेंडर खरीदने पर मजबूर। वज़ीर आला पंजाब का 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान। मरीम नवाज कहती हैं कि फिल्म सिटी मनसूबा मुल्क का पहला मुकम्मल एंड टू एंड मीडिया प्रोडक्शन हब है। पाकिस्तान की फिल्मी सनत की जदीद टेक्नोलॉजी, सहूलियात और वसाइल के जरिए बहाली यकीनी बनाई जाएगी। मनसूबा मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा।
जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। क़यादत फातिमा सना करेंगी। आलिया रियाज, मुनीबा अली, नशरा सिंधु और दीगर खिलाड़ी शामिल। मोमना रियासत पहली बार कौमी स्क्वाड का हिस्सा। वनडे मैचेस 4, 6 और 9 मई को होंगे। सीरीज आईसीसी विमेंस चैंपियनशिप 2025-29 का हिस्सा। दोनों की टीमों के दरमियान 3 T20 मैचेस भी होंगे। सीरीज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेली जाएगी।